लक्ष्मीरूपेण संस्थितः நமஸ்தஸ்யை 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 நமோ நமஹ என்று தேவி மகாத்மத்தில் ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை குறித்த ஸ்லோகம் இது. பக்தர்களே, எந்த தேவியானவள் எல்லா உயிரினங்களிலும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி உருவில் உள்ளாலும் ஐஸ்வர்யானாம் அபிவிருத்தியர்த்தம் தர்மார்த்த காம மோக்ஷ சதுர்வித பல புருஷார்த்த சித்தியர்த்தம் ராஜத்வாரே சர்வகார்யானுகூல சித்தியர்த்தம் அரோக தரகாத்திர வஜ்ர சரீரதா சித்தியர்த்தம் ஸ்ரீ பத்மாவதி நாயிகா சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச சுவாமி கருணா கடாட்ச வீக்ஷண சித்தியர்த்தம் ஸ்ரீ பத்மாவதி சந்நிதௌ ஸ்ரீபாஞ்சராத்திர பகவத்சாஸ்திரோக்த விதானேன கல்யாண மகோத்சவம் ஆச்சார்ய முகேன கரிஷ்யே. ஸ்ரீ பத்மாவதி பிரியதாம் பிரியதாம் பகவதி பத்மாவதி. மங்களவாத்தியம். பத்மாவதியை நமோ நமஹ. பக்தர்களே, எந்த தேவியானவள் எல்லா உயிரினங்களிலும் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி உருவில் உள்ளாலோ அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமியை நான் வணங்குகிறேன். அந்த ஸ்ரீ மகாலட்சுமி இந்த திருச்சானூரில் குழுவிற்கும் அலர்மேல் மங்கை என்னும் ஸ்ரீ பத்மாவதி தாயார். அந்த தாயாருக்கு அவளது மணகாலரான ஸ்ரீனிவாச பெருமாளோடு நடைபெறும் திவ்ய திரு கல்யாணம் இது. ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி முதலில் சங்கல்ப மந்திரத்தை கேட்டோம். பின்பு கலச பூஜை, ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சன கைங்கரியம் இவை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நடைபெற உள்ளது. மகாலட்சுமி நீரிலிருந்து செந்தாமரையை கையில் ஏந்தி பின் அதன் மீது அமர்ந்து ஒளி வீசி அவதரித்தாள். சர்வ லோகங்களும் லக்ஷ்மி தேவிக்கு புனித நீராட்டு வைபவம் நடத்தினார்கள். இது ஒரு புறம் இருக்க, தன்வந்திரி கையில் இருந்த அமிர்த கலசத்தை தட்டி பறித்து கொண்டு அசுரர்கள் ஓடத் துவங்கினார். உடனே அந்த விஷ்ணு மோகினியாக அவதாரம் எடுத்து அசுரர்களை மயக்கி அமுத கலசத்தை கைப்பற்றி தேவர்களிடம் கொடுத்தார்களாம். பக்தர்களே, இழந்த பலத்தை செல்வம் வந்தவுடன் பெற்ற தேவர்கள் அசுரர்களுடன் போரிட்டு வென்றனர். இந்திரனுக்கு போன பதவியும் கிடைத்தது. மகாலட்சுமியின் அருள் பார்வையும் திரும்பி கிடைத்தது. அந்த மகாலட்சுமி மகாவிஷ்ணுவை மணவாளனாக ஏற்றுக்கொண்ட சுயம்பரம் வைபவம் நடைபெறியது. ஒரு அவதாரத்தில் லக்ஷ்மியின் தந்தைதான் பிருகு, மற்றொரு அவதாரத்தில் சமுத்திரராஜன். 2 அவதாரத்திலும் லீலா வினோதம் உண்டு. மகாலட்சுமியின் அவதார மகிமையை கேட்டு மனம் மகிழ்ந்த மைத்ரேயர் பிருகு வம்சம் பற்றிய விவரங்களை கேட்டு தெரிந்து கொள்ள ஆவலாக இருப்பதாக கூறினார். பக்தர்களே, இதோ அந்த பத்மாவதி தாயார் தங்க சிம்மாசனத்திலே அமர்ந்து கொண்டு பூ மாலையாலும் மாலையாலும் அலங்கரித்து கொண்டு ஆபரணங்களையும் மற்றும் கஸ்தூரி திலக்கத்தையும் அணிந்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் அற்புதமான காட்சியை தந்து கொண்டிருக்கிறார். இதோ பாஞ்சராத்திர ஆகம விதிமுறைப்படி அர்ச்சகர் சுவாமி கைங்கரியத்தை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஆரம்பிக்க உள்ளார். நாமும் இதை ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சி மூலம் அந்த பத்மாவதி தாயாரினுடைய திரு கல்யாண வைபவத்தை கண் குளிர சேவித்து புண்ணியம் பல பெறுவோம். நமஸ்தேஸ்து மகாமாயே ஸ்ரீ பீட்டே சுர பூஜிதே சங்க சக்கர கதாஹஸ்தே மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த மகாலட்சுமியை தியானிப்போம். பிருகு பற்றி முன்னர் சிறு அளவில் குறிப்பிட்டதை நினைவுபடுத்தி மேலும் விளக்கமாக கூறுகிறார். பிருகுவின் இல்லத்தரசி பெயர் கியாதி. இவர்களுக்கு பிறந்தவள்தான் மகாலட்சுமியான விஷ்ணு பத்னி. பிருகு தம்பதியினருக்கு தாதா விதாதா என 2 ஆண் பிள்ளைகளாம். மகாமேருவின் புதல்விகளான ஆயதி நியதி ஆகிய இருவரும் முறையே தாதா விதாதா ஆகிய இருவரையும் மணந்தார். தாதாவுக்கும் ஆயுதிக்கும் பிராணன் என்பவன் பிறந்தான். அவனுக்கு துதிமான் என்ற ஒரு குமாரன் பிறந்தான். அவனுக்கு ஆஜவான் என்ற ஒரு குமாரன் பிறந்தான். இது ஒரு புறம் இருக்க,
மர்ஷி மாமுனிவருக்கு சம்பூதி என்பவள் மனைவி. இவர்களுக்கு பௌர்ணமாசன் என்ற புத்திரன் பிறந்தானாம். அவனுக்கு விரஜஸ் பர்வதன் என 2 குமரர்கள். பக்தர்களே, அதோ அப்படிப்பட்ட அந்த மகாலட்சுமி தாயார் புஷ்கரணியில் அவதரித்து அந்த திருச்சானூரில் கொலுவிற்று தங்க சிம்மாசனத்திலே அமர்ந்து கொண்டு நம் போன்ற பக்தர்களுக்கு அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறாள். அப்படிப்பட்ட அந்த பத்மாவதி தாயாரை நாம் 2 கரம் கூப்பி சேவிப்போம். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகி கோவிந்தா கோவிந்தா என்று அந்த தாயாரை நாம் சேவிப்போம். பத்மாவதி தாயாருடைய திரு கல்யாண உற்சவத்தை நாம் கோயிலில் உள்ளே இருக்கும் மண்டபத்திலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். அதோ அந்த பத்மாவதி தாயார் பூ மாலையால் அலங்காரம் செய்து கொண்டு நமக்கெல்லாம் அற்புதமான காட்சி அருள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த கல்யாண உற்சவத்திலே ஸ்ரீனிவாசனனை கரம் பிடிப்பதற்காக அந்த தாயார் ஆனவள் தங்க சிம்மாசனத்திலே வீற்றிருக்கிறாள். இவள், இந்த தாயார் ஆனவள் அனைத்து சம்பத்துகளையும் கொடுப்பவள். அப்படி அந்த சம்பத்களிலே அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களையும், அந்த அஷ்ட ஐஸ்வர்யங்களிலே எம்பெருமான் எப்படி தச அவதாரம் எடுத்து அனைத்து அவதாரங்களிலும் ஒரு பெயரை வைத்து கொண்டாரோ, அதேபோல் இவள் கூட லக்ஷ்மிகளாக அவதாரம் எடுத்து பக்தர்களை அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறாள். அப்படிப்பட்ட அந்த லக்ஷ்மி தேவி என்கின்ற பத்மாவதி தாயாரை இப்போது நாம் திரு கல்யாண உற்சவத்தில் சேவித்து கொண்டிருக்கிறோம். பக்தர்களே, கண் குளிர அந்த பத்மாவதி தாயாருடைய மகோற்சவத்தை சேவிப்போம். मध्यमा पितर सौम्यासाः असंय ईश्वरामृतारधज्ञास्तेन मन्दपितर अवेशो त्वज्ञसोमप्रचेकितामनेषा त्वज्ञरज्येष्ठमनोनेषे पन्थाः
तव प्रणेदे पितरो न इन्द्रो देवेषु रत्नामभजन्त धीराः त्वया हि न पितरस्वमपूर्वे कर्माणि चक्रुः पवमानधीराः वन्वन्नवातः परधेभ्यरपोर्णवेरेभ्यभस्मेर्मघवा भवानः त्वग्गसोमपितृभः संविधानो नोद्या वा पृथिवी पातदुन्धा तस्मै दयिन्दो हविषा विधेम वयज्ञस्याम पतयोरयेणाम् बर्हेषदप्यतरवोत्यर्वागिमावो हव्याचक्रमाजुषध्वम् तागतावसा सन्तामेनाभानशंयोररपदधाताम् उपाहूता पितरः सौम्यासो बर्हे शेषु निधिषु प्रियेषु त आगमन्तु दैह श्रोवन्तु दिब्रुवन्तु देवन्त्वस्मान् अहं पितॄन् सोऽभिदत्रां अवेत्स्य न पातञ्च विक्रमाणञ्च विष्णोः बर्हिषदो ये स्वदया सुतस्य भजन्त ऋत्वस्तैहागमिष्ठाः अग्निष्वात्ताः पितरयेह गच्छत सदसदसदत सुप्रणेतयः अत्ताः वेज्ञ प्रयादानि बर्हिष्ठा प्रयज्ञ सर्वा वीरं दधातनः आयं दुनः पितरः सौम्यासोऽग्निष्वात्ता पतिदेवयानेः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो दिब्रुवन्तु देवन्त्वस्मान् ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवस्वधया मादयन्ते तेभ्यः स्वरालसो नेति मेतां यथा वशं तन्वं कल्पयति अग्निष्वात्तान् ऋतुमतो हवामहे नारासज्ञ से सोमपेथं य आशुः तेन विप्रासस्व हवा भवन्तु वयज्ञस्याम पतयोरयेणाम् जानो दक्षिणतो निषद्य मयि यज्ञमभिगृह्णीत विश्वे माहिज्ञशिष्टपितरोः केनचिन्नो यद्वागपुरुषता करामाम् आसेनासो अरुणेनामुपस्थे रयन्धत्तदासुषे मर्त्याय पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वप्रयच्छत तयोर्जं दधाता यमग्नगव्यवाहनत्वं जन्मन्यसेर्यम् तन्नो गेर्भ्यश्रवायं देवत्रापानयायुजम् यो अग्नः कव्यवाहनः पितॄन्यक्षादृता वृधाः प्रदोहव्याने वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्यः त्वमग्न एलितो जातवेदो वाग्भव्याने स्वरभेने कृत्वे राधाः पितृभ्यः स्वधयामे राधाः पितृभ्यः स्वदयात् अक्षन्नभ्यत्वा देवप्रयादाः वेज्ञषे इदं पितृभ्यो नमो अस्तद्य ये पूर्वासोय उपारासयेयुः ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वानो नग् स्ववृजना स्वभिक्षु ये च पितरो ये च नेहयाग्नश्च विद्मया ओचन प्रविद्माम् त्वं वेधयदि ते जातवेदस्वधाधर
यज्ञज्ञ सुकृतञ्जुषस्वा अथा यथा नः पितरः परासो अथा यथा नः पितरः परास रत्नासो अग्नर्तमा सुषाणाः शुचेदयं देधेति मुग्धसा सक्षामा भिन्दन्तो अरुणेरपौव्रन् उशन्तस्त्वानिधे मह्युशन्तः समे धीमहि उशन्नो शत आवाह पितॄन् हविष अत्तावे अपां फेनेन नमोचे शिरा इन्द्रोद वर्तयः विश्वाय दजाय स्पृधाः सोमो राजामृतज्ञ सुतर्जेषेणा जहान्मृत्युं ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानज्ञ शुक्रमन्दास इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधो अभ्याक्षीरं व्यापिभत्कृङ्गाङ्गिरसोऽधिया ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानज्ञ शुक्रमन्दास इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधो गोमामद्यो व्यापिभच्छन्दसा हग्गशोचिषत् ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानज्ञ शुक्रमन्दास इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधो अन्नात्परिश्रुतो रसं ब्रह्मणा व्यापिभक्षत्रं वयसोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानज्ञ शुक्रमन्दास इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु तोमोत्रं निजाहादियोनं प्रविशदिन्द्रियं गर्भो जरायुणावृत उल्बञ्जहाति जन्मना ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानज्ञ शुक्रमन्दास इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु दृष्ट्वा रूपे व्याकारोत् सत्यानृते प्रजापतिः अश्रद्धामनृते दधात् श्रद्धाज्ञ सत्य प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानज्ञ शुक्रमन्दास इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु देदेन रूपे व्यापिभत्सुतासुतो प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानज्ञ शुक्रमन्दास इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु दृष्ट्वा परिश्रुतो रसज्ञ शुक्रेण शुक्रं व्यापिभत्पयसोमं प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानज्ञ शुक्रमन्दास इन्द्रस्येन्द्रियमिदं वयोमृतं मधु शीर्षेण तन्त्रं मनसा मनीषिणा पूर्णाश्रोत्रेण कवयो वयन्ते अश्विना यज्ञज्ञासाभिता सरस्वतेन्द्रस्य रूपं वरुणोऽभिषज्यन् तदस्य रूपममृतज्ञ सचेभ्यस्तिस्वादाध्वर्देवता सज्ञारराणाः लोमाने षष्ठेर्बहुधानदोक्माभ्यस्त्वगस्य मार्ग समाभवन्नलाजाः तदश्विना विषजा रुद्रवर्तने सरस्वते वयति पेष अन्तारम् अस्थे मज्जानं मासारे कारोतरेण दधतो गवां त्वचे सरस्वती मनसा पेशलं वसुना सत्याभ्यां वयति दर्शतं पपोः
रसं परिश्रुता नरोहितमग्नहुर्भिरस्तसारन्नवेमा पयसा शुक्रममृतं जनित्रव्यसुरया मोत्राज्जनयन्दरताः अपामादिं दुर्मतिं बाधमाना ओपध्यं वातज्ञ सबुवन्तदारात् इन्द्रसूत्रामाहृदयेन सत्यं बोरोलाशेन सविता जजाना यकृत्क्लोमानं वरुणाभिषज्यन्मतस्नेवायव्यैर्नमेनातिपित्तम् आन्द्रानिस्थालिर्मधुपिण्डमानागुधा पात्राणि सुदुघानधेनुः शेनस्य पत्रान्न प्लीहा शचेभिरासन्धि नाभिरुदरन्न माता कुम्भोपनिष्टोर्जानिता शचेभिर्यस्मिन्नग्रे योऽन्याङ्गर्भो अन्तः प्राशव्यक्तशतधार उत्सो दुहेन कुम्भे स्वधां पितृभ्याः मोघव्य सदस्य शिर इत्सतेन जिह्वा पवित्रमश्विनासन् सरस्वते चप्पन्नपायोर्भिषजस्य बालो वस्तिर्नशपो हरसातरश्वे अश्वेभ्यां चक्षुरमृतं ग्रहाभ्यां छागेन तेजो हविषा श्रुतेन पक्ष्मानि गोधूमे कुवाले सुतानि पेजो न शुक्रमसेदं वसाते अभिर्ननेषो न सेवेर्याय प्राणस्य पन्था अमृतो ग्रहाभ्याम् यवान बर्हिर्भुविकेशराणि कर्कभो जज्ञे मधुसारघं मुखात् आत्मनुपस्थेन वृकस्य लोममुखे श्मश्रोणिनव्याघ्रलोमा केशानशीर्षन्यशसे श्रियै शिखा सिंहस्य लोमत्विषेरिन्द्रियाणि अङ्गान्यात्मन्भिषजालदश्विना मानमङ्गे समाधात् सरस्वती इन्द्रस्य रूपज्ञशतमानमायुश्चन्द्रेण ज्योतिरमृतं दधानाः सरस्वती योऽन्यां गर्भमन्तरश्वेभ्यां पत्नी सुकृतं बिभर्ते अपाग्रसेन वरुणो न साम्नेन्द्रज्ञ श्रिये जनयन्नप्सुराजा तेजः पशूनाग्न हविरिन्द्रियावत्परिश्रुता पयसा सारघं मधु अश्वेभ्यां दुग्धं विषजा सरस्वत्या सुता सुताभ्यामृतः सोम इन्दोः क्षत्रस्य नाभिरसे क्षत्रस्य योनिरसे माहिज्ञसेन्माहिज्ञसेः निशासादधृतौ रातो वरुणपत्स्यास्वा साम्राज्याय सुक्रतोः मृत्योः पाहि विद्योत्पाहि देवस्य त्वा सवितुः प्रासावेश्विनोर्बाहुभ्यां पोष्णाहस्ताभ्याम् अश्विनोर्भैषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसा याभिषिञ्चामि सरस्वत्यै भैषज्येन वीर्याय नाद्यायाभिषिञ्चामि इन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यशासेऽभिषिञ्चामि कोऽसि कतमोऽसि कस्मै त्वा कायत्वा शुश्लोकसुमङ्गलसत्याराजन् शिरो मे श्रेर्यशो मुखं द्विषिकेशाश्च श्मश्रोणे
राजा मे प्राणो अमृतज्ञ सम्राट् चक्षुर् विराट्क्षोत्रम् जिह्वा मे भद्रं वाङ्महो मनो मन्युट्स्वरा भामाः मोदाः प्रमोदा अङ्गुलेरङ्गानि मित्रं मे सहा बाहो मे बलमिन्द्रियज्ञ हस्तो मे कर्म वीर्यम् आत्मा क्षत्रमुरो मम पृष्ठेर्मे राष्ट्रमुदरमग्नसौ ग्रीवाश्च श्रोणे पुरो अरत्ने जानोने विशो मेऽङ्गानि सर्वतः नाभर्मे चित्तं विज्ञानं वायुर्मे पचतर्भसत् आनन्दनन्दा आण्डौ मे भगः सौभाग्यं पसाः यज्ञाभ्यां पद्भ्यां धर्मोऽस्मि विशिराजा प्रतिष्ठितः प्रतिक्षत्रे प्रतिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्वेषु प्रतिष्ठामि घोषो प्रत्यङ्गेषु प्रतिष्ठाम्यात्मन् प्रतिप्राणेषु प्रतिष्ठामि पुष्टे प्रतिद्यावा पृथिव्यो प्रतिष्ठामि यज्ञे त्रया देवा एकादशस्त्रयस्त्रिज्ञसा सुराधसः बृहस्पति पुरोहिता देवस्य सवितुः सवे देवा देवैरावन्तु महा प्रथमा द्वितीया सत्येना सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजर्भर्यजोज्ञसामाभिः सामान् ऋग्भर्च पुराणवाक्याभिः पुराणवाक्या याज्याभिर्याज्या वषट्कारैः वषट्कारा आहोतिभिराहुतयो मे कामान् समर्थयन्तु भो स्वाहा लोमानि प्रयाधर्ममत्वं मानतिरागतिः नाज्ञसम्म उपानधर्वस्वस्थे मज्जामानतिः ॐ ज्मन् उपेति वेतसे अवत्तरमित्यवत् तरं नदीषु अग्ने पित्तम् अपाम् असि मण्डूकीताभिः एति गहि सा इमं नः यज्ञं पावकवर्णमिति पावकवर्णम् शिवं कृधि पावके एति चितयन्त्या कृपा क्षामन् रुरुचे उषसः न भानुना तूर्वन् नायामन् एतशस्य नो रणे एति यः घृणे न ततृषाणः अजरः अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देवा जिह्वया एति देवान् वक्षि यक्षि च सह नः पावकादिदिवः अग्ने देवान् इह एति वः उपेति यज्ञं हविः च नः अपाम् इदं ययनमिति निअयनं समुद्रस्य निवेशनमिति निवेशनम् अन्यं ते अस्मत् तपन्तु हेतयः पावकः अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं शिवः भवा नमः ते हरसे शोचिषे नमः ते अस्तु अर्चिषे अन्यं ते अस्मत् तपन्तु हेतयः पावकः अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं शिवः भव नृषद इति नृसदे पट् अप्सुषद इत्यप्सु सदे पट् वनसद इति वनसदे पट् बर्हिषद इति बर्हि सदे पट् सुवर्विद इति सुवः विदे पट् ये देवाः देवानां यज्ञियाः यज्ञियानां संवत्सरेणमिति संवत्सरेणम् उपेति भागम् आसते अहुताद इत्यहुता अदः हविषः यज्ञे अस्मिन् स्वयं जुहुध्वम् मधुनः घृतस्य ये देवाः देवेषु अधीति देवत्वमिति देवात्वम् आयन् ये ब्रह्मणः पुर एतार इति पुरः एतारः अस्य येभ्यः नाऋते पवते धाम किं च नाते दिवः न पृथिव्याः
अधीति स्नुषु प्राणदा इति प्राणदाः अपानदा इत्यपानदाः व्यानदा इति व्यानदाः चक्षुर्दा इति चक्षुदाः वर्चोदा इति वर्चहादाः वरिवोदा इति वरिवहादाः अन्यं ते अस्मत् तपन्तो हेतयः पावकः अस्मभ्यमित्यस्माभ्यं शिवः भव अग्निः तिग्मेन शोचिषा यगंसते विश्वं नीति अत्रिणम् अग्निः नः वगंसते एरयिं सह एना अनीकेन सुविदत्र इति सुविदत्रः अस्मे इति यष्टा देवान् आयजिष्ठ इत्यायजिष्ठः स्वस्ति अदब्धः गोपा इति गोपाः उत नः परस्पा इति परः पाः अग्ने द्युमदिति द्युमत् उत रेवत् दिदिः यः इमा विश्वा भुवनानि जुह्वत् ऋषिः होता निशसादेति निससाद पिता नः सह आशिषेत्य आशिषा द्रविणम् इच्छमानः परमच्छद इति परमच्छदः वरे एति विवेश विश्वकर्मेति विश्वकर्मा मनसा यत् विहाय इति विहायाः धाता विधातेति विधाता परमा उत सन्द्रिगिति सन्द्रिक् तेषाम् इष्टानि समिति इषा मदन्ति यत्र सप्त ऋषीनिति सप्त ऋषीन् परः एकम् आहुः यः नः पिता जनिता यः विधातेति विधाता यः नः सतः अभि एति सत् जजान यः देवानाम् नामधा इति नामधाः एकः एवातं सम्प्रश्नमिति सम्प्रश्न्यं भुवनायन्ति अन्या ते एति अयजन्त द्रविणं समिति अस्मै ऋषयः पूर्वे जरितारः न भूना असूर्त असूर्त रजसः विमान इति विमाने ये भूतानि समकृण्वन्निति सम् अकृण्वन् इमानि नातं विदाथ यः इदं जजान பத்மாவதியை நமோ நமஹ. பக்தர்களே, பத்மாவதி தாயாரினுடைய திரு கல்யாண மகோத்சவத்தில் நாம் சேவித்தது மகா சங்கல்பம் கன்னிகா தானம். அந்த மகா சங்கல்பம் கன்னியா தானத்திலே அந்த தாயாருடைய பிரவரர்களையும் 7 தலைமுறைக்கான பிரவரர்களையும் பெருமாளுடைய பிரபலைகளையும் கொண்டு மகா சங்கல்பம் கன்னிகாதானம் செய்து முடித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. பெண்ணாக பிறந்துவிட்டால் புகுந்த வீட்டிற்கு செல்லும் பொழுது அந்த பெண்ணினுடைய கோத்திரமும் நாமமும் மாறிவிடுகின்றன அல்லவா? அதேபோல் அந்த புகுந்த வீட்டிற்கு சென்று நற்பெயரை செய்ய வேண்டும் என்னும் மகாலட்சுமியாக அந்த தாயாரையும் லக்ஷ்மி நாராயணனாக அந்த பெருமானையும் அவர்களுக்கு இருவருக்கும் கரங்களின் மீது தேங்காய் வைத்து சாலங்கிருத்த கன்னியாதானம் செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அதை தொடர்ந்து திருமாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த திருமாங்கல்யத்தை மஞ்சள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்கியம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு இதோ அந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு கற்பூர மங்கள நீராஜனத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து அந்த திருமாங்கல்யத்தை அந்த தாயாருக்கு சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சர்வ வரதே சர்வ துஷ்ட பயங்கரி சர்வ துக்க ஹரே தேவி மகாலட்சுமி நமோஸ்துதே என்று அந்த தாயாரை நாம் சேவிக்கும் பொழுது அனைத்து துஷ்ட சக்தியையும் போக்கும் பயங்கரி, அனைத்தும் அறிந்தவளே, அனைத்தையும் கொடுப்பவளே, அனைத்து துக்கங்களையும் போக்கும் மகாலட்சுமியை உனக்கு நமஸ்காரம் என்று 2 கரம் கூப்பி சேவிப்போம். பக்தர்களே, இப்பொழுது கன்னிகா தானத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதை தொடர்ந்து திருமாங்கல்ய தாரணம் செய்ய உள்ளார். இதை நாம் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி தொலைக்காட்சியின் மூலம் சேவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இதோ அந்த திருமாங்கல்யத்தை பகவான் கரத்திலே சமர்ப்பித்து பின்பு அதை தாயாருக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி.
జ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానత్ సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయోవసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రకేతుః ప్రభానాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాదిస్తేజస్వానాథపద్యుస్తపన్నపితపన్ రోచనో రోచమానః శోభనః శోభమానః కళ్యాణః. శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కలిసి ఉన్నారు తమకమున పెండ్లికిని. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కలిసి ఉన్నారు తమకమున పెండ్లికిని. కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. బాసికములు కట్టరో పై పై దంపతులకు శేషపాలందియరో చేతులకును. సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో సూసకాల పేరంటాండ్లు శోభాన పాడరో మోసపోక ఇట్టే ముహూర్తమడుగరో. అదే శ్రీ వెంకటపతి అలమేలు మంగయును కలిసియున్నారు తమ
ॐ पृथिव्या परः देवेभिः असुरैः गुहायत् कं स्वितगर्भं प्रथमं दध्रे आपः यत्र देवाः समगच्छन्तेति सम् अगच्छन्त विश्वे तम् इत गर्भं प्रथमं दध्रे आपः यत्र देवाः समगच्छन्तेति सम् अगच्छन्त विश्वे अजस्य नाभौ अधीति एकम् अर्पितम् यस्मिन् इदं विश्वं भुवनम् अधीति श्लितम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा आहि अजनिष्ठा देवः आत् इत गन्धर्वः अभवत् द्वितीयः तृतीयः पिता जनिता ओषधीनाम् अपां गर्भं वीति अदधात् पुरुत्रेति पुरुत्रा चक्षुषः पिता मनसा हि धीरः घृतम् एने इति अजनत् नन्नमाने इति यदा इत अन्त आह अददृगम्हन्त पूर्वे आथ इत द्यावा पृथिवी इति द्यावा पृथिवी अप्रथेता विश्वतश्चक्षुरिति विश्वतः चक्षुः उत विश्वतो हस्त इति विश्वतः हस्तः ॐ यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणान् दीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ